وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ مسٹر ولیم کے جسم پر جہاں بھی یہ محلول لگے گا وہاں انہیں شدید کھجلی محسوس ہوگی، ناقابل برداشت کھجلی، اور عادل مجھے بتانے لگا۔ اور پھر 1 منٹ کے بعد اس جگہ اتنی تیز چبھن محسوس ہوگی جیسے سوئیاں چبوئی جا رہی ہوں، اور تقریباً 5 منٹ تک یہی کیفیت رہے گی، اور میرا خیال ہے مس گریٹا کہ اس کے بعد مسٹر ولیم اپنی ضد چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سنتے ہی ولیم زور زور سے چیخ کر عادل کو ایسا کرنے سے روکنے لگا، مگر عادل نے اس کی ایک نہ سنی اور اس نے وہ محلول ولیم کے سینے پر اسپرے کر ہی دیا۔ چند لمحے بعد ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا اور ولیم کا جسم بری طرح اینٹنے لگا، اور وہ بار بار اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکے دے رہا تھا، اور پھر 1 منٹ گزرتے ہی وہ اس طرح اچھل اچھل کر چیخنے لگا جیسے انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو، اور اس کی حالت قابل رحم تھی۔ چیختے چیختے اس کا گلا بیٹھ گیا۔ مسٹر ولیم، تم چاہو تو تمہیں اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، عادل نے ولیم کو مخاطب کیا۔ میں تمہارے متاثرہ جسم کے حصوں پر دوسری دوا چھڑک دوں گا اور جس سے یہ چبھن ختم ہو جائے گی، ورنہ دوبارہ وقت پورے ہونے سے پہلے یہی دوا اسپرے کر دوں گا اور پھر تم پہلے کی نسبت دگنی اذیت محسوس کرو گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ اور ولیم کو چیخنے سے مہلت ملتی تو عادل کی کوئی بات کا جواب بھی دیتا، اور نتیجہ عادل نے وہی محلول دوبارہ اس کے جسم پر اسپرے کر دیا۔ اس مرتبہ عادل نے اس کے پیٹ پر بھی اسپرے کیا تھا، اور ذرا ہی دیر میں ولیم کی حالت اور بگڑ گئی، اور میں سوچنے لگی کہ کہیں وہ پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عادل وہ شیشی الماری میں رکھ آیا اور وہ پلٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک آہنی شکنجہ نظر آیا، اور اسی سے بجلی کا ایک لمبا تار اور پلگ بھی منسلک تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور شکنجہ کھولا، اور وہ عام شکنجوں سے مختلف تھا۔ اس کے اندر تیز نوکدار کیلیں نظر آ رہی تھی، اور عادل نے ان کیلوں کے درمیان ولیم کے ایک پیر کی انگلیاں کسنا شروع کر دیں، اور ولیم چیختے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آہنی شکنجے کی طرف دیکھتا رہا، اور میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تکلیف اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اور عادل کو میں نے شکنجہ مزید کسنے سے روک دیا۔ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ ولیم ایک بار پھر بے ہوش نہ ہو جائے۔ عادل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر شکنجے سے منسلک تار کو پکڑ کر قریبی دیوار کی طرف بڑھنے لگا، اور جہاں مجھے سوئچ دکھائی دے رہا تھا اور شکنجے کے نچلے حصے میں لکڑی لگی ہوئی تھی تاکہ کرنٹ فرش تک نہ پہنچے، اور سوئچ آن ہوتے ہی ولیم کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ برقی رو اس کے جسم میں گردش کرنے لگی، اور پھر چند لمحے بعد میں نے عادل کو سوئچ آف کرنے کا اشارہ کیا۔ عادل نے سوئچ آف کیا اور ادھر ولیم کے جسم نے آخری جھٹکا لیا اور ساکت ہو گیا، اور جو مجھے اندیشہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ ولیم دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور شاید اس کے جسم میں اب مزید اذیت برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور اس کے باوجود اس کی قوت ارادی حیرت انگیز تھی، اور اب تک کی انتہائی تشدد کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی۔ ہر حربہ اس پر ناکام ہو رہا تھا، اور عادل اسے ہوش میں لانے کے لیے دوا سنگھا رہا تھا۔ اب ذرا کچھ دیر کے بعد باہر چلی جائیں، رگھوویر نے مجھ سے کہا۔ کیوں؟ اس کے پاس ہم دونوں کو چھوڑ دیں؟ اور میں سمجھ گئی کہ رگھوویر تشدد کا کوئی ایسا نیا طریقہ آزمانا چاہتا ہے جس کا تعلق شاید ولیم کے نازک جسمانی اعضاء سے ہو، اور اس کے سوا مجھے وہاں سے ہٹانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، اور میں اسی لیے مزید کوئی سوال کیے بغیر باہر آ گئی، اور اب میں راہداری میں تھی۔ ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کے اندر سے ولیم کے گھگیانے کی آوازیں آئی، اور خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے ارے! اور رگھوویر اور عادل نے ولیم کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے ولیم کی تیز چیخوں سے لگایا۔
اور اس کی چیخوں میں اب ایک طرح کی تڑپ بھی شامل ہو گئی اور وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ مس گریٹا کو بلاؤ، میں ان کے سوالوں کے جواب دینے پر راضی ہوں۔ اور چیخوں کے درمیان ولیم نے رک رک کر کہا، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ مس گریٹا تہہ خانے سے چلی گئیں اور انہیں بلانے میں دیر لگے گی، تو ایسا نہیں ہے، تمہیں زیادہ دیر سستانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ رگھوویر کی آواز سنائی دی، اور اگر تم نے دھوکہ دیا تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہی کھیل شروع کر دیں گے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد مجھے عادل نے آواز دی اور میں کمرے میں پہنچ گئی، اور میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ ولیم اس طرح دم لینا چاہتا تھا، اور رگھوویر کا اندازہ غلط نہیں لگتا تھا۔ ہاں مسٹر ولیم، میں نے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ اب کیونکہ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، اس لیے مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ سیان کہاں ہے، اور اس سوال کا جواب مجھے یوں بھی نہیں چاہیے کہ اب اتنا وقت نہیں رہا، اور سیان جہاں بھی ہے اسے اتنے کم وقت میں وہاں سے اغوا کرنا ممکن نہیں، اور اس سے قطعی نظر یہ بھی چھپا نہیں رہ سکے گا کہ تمہیں اغوا کر لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ پھر سیان اس جگہ ہرگز قیام نہیں کرے گا جو تمہارے علم میں ہے۔ اب تمہیں میرے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ معاملہ کے متعلق چھان بین میں کیوں شروع کی گئی، اور میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ پاپا پانی، کراہتے ہوئے اس نے پانی مانگا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، اور تکلیف کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ پانی بھی مل جائے گا، مگر پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں اسے گھور کر بولی۔ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے پانی کی رٹ لگاتا رہا، اور میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پانی پیے بغیر میں بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پانی پی لو، اور اس طرح اور کتنی دیر تم وقت کو ٹال سکتے ہو؟ زبان تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گی۔ اور کمرے میں پانی نہیں تھا، رگھوویر کو پانی لینے کے لیے تہہ خانے سے باہر جانا پڑا، اور جب تک وہ پانی لے کر لوٹا ولیم کراہتا اور ہامتا رہا، اور رگھوویر نے پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کے خشک ہونٹوں سے لگا دیا اور وہ پورا گلاس پی گیا۔ رگھوویر نے گلاس اس کے ہونٹوں سے ہٹا لیا۔ ہاں، اب میرے سوال کا جواب دینے پر آمادہ ہو، یا میں تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دوبارہ کمرے سے باہر چلے جاؤں؟ اور میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ پھر ولیم نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے کہا تھا، ہاں اب تم جا سکتی ہو۔ سفید کتے، میں تیری کھال ادھیڑ دوں گی، میں غصے سے چیخی، اور میں کسی کتیا کے بھونکنے کا برا نہیں مانتا۔ وہ یہ کہہ کر ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا، اور اس نے نفرت سے مجھ پر تھوکنے کی کوشش بھی کی، مگر میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی، اور اسی کے ساتھ میری لات اس کے پیٹ پر پڑی۔ اوہ! وہ چیخا، اور پھر ولیم کو اپنے بد زبانی کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا عملی مظاہرہ شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں خنجر تھا، اور میں ولیم کے ایک ہاتھ کی کھال ادھیڑ رہی تھی، اور تہہ خانہ ولیم کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ رک نہیں رہے تھے۔ اس کے ایک بازو کو میں نے ادھیڑ کر رکھ دیا، اور پھر عادل نے ادھرے ہوئے بازو پر نمک کا تیزاب لگانا شروع کیا، تو ولیم اس اذیت کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا، اور وہ تیسری بار ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے زخموں کی ڈریسنگ کر دینا، میں نے عادل کو مخاطب کیا، اور وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، اور میں مزید بولی، اسے ابھی زندہ رکھنا ضروری ہے، جب تک یہ زبان نہ کھول دے اسے زندہ تو رکھنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ مزید تشدد برداشت کرنے کے قابل نہیں، اور اسے ہوش میں لے آؤ لیکن سونے نہیں دینا، اور اس کے لیے یہاں کسی آدمی کی ڈیوٹی مقرر کر دو۔ جب تک دوبارہ اسے پوچھ گچھ شروع کریں گے تو زخموں کو کھول دیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 5:30 بج چکے تھے، اور میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دوپہر کو 2 بجے کے بعد اسے پھر تختہ مشق بنائیں گے، اور اوپر سے فرسٹ ایڈ باکس لانا پڑے گا۔ عادل نے رگھوویر کو دیکھا، اور میں لے آتا ہوں، اور رگھوویر کے ساتھ میں بھی تہہ خانے سے نکل آئی، اور میں اس وقت شدید قسم کی جنجلاہٹ میں مبتلا تھی۔ اس کی وجہ ولیم کی زبان کھلوانے میں ناکامی تھی، اور خلاف توقع وہ حیرت ناک قوت ارادی کا مالک ثابت ہوا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے جب میں گھر پہنچی تو دلاری نے کہا، تمہیں زحمت تو ہوگی دلاری، میرے لیے ناشتہ بنا دو، اور ناشتہ کر کے میں سو جاؤں گی۔ اور اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں معاملہ جی، یہ تو میرا کرتویہ ہے۔ اور دلاری نے جماہی لی، آپ کپڑے بدل لیں، میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے سونے کے لیے لباس تبدیل کیا، اور دلاری کے ناشتہ بنا کر لانے کا انتظار کرنے لگی، اور دلاری نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ناشتہ کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر میری آنکھ لگ گئی، اور فوری طور پر نیند آ جانے کا سبب تھکن بھی تھی،
और सोते सोते अचानक मुझे अपनी जहन में सनसनाहट सी महसूस हुई और मैंने आंखें खोल दी। अपने ऊपर मुझे एक दाग दाग चेहरा झुका दिखाई दिया और मैं उसे फौरन पहचान गई। वो चंपा का करीब चेहरा था और आंखें खुलते ही मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराईं और उसी के साथ मेरे ज़हन को झटका लगा। तू अपनी जगह इसी तरह बेहसो हरकत पड़ी रहेगी मामला? चंपा के होंठ हिले। हाँ, मैं अपनी जगह से हरकत नहीं करूंगी। और मैं ख्वाब आलूद सी आवाज में खुद और मेरे इरादे को बोलने में कोई दखल नहीं था। इसके बाद मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे जहन को टटोल रहा हो और मैं पलक झपकाए बगैर चंपा की तरफ देखे जा रही थी और उसकी और मेरी नज़र के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक कायम था कि मैं किसी और तरफ नहीं देख सकती थी। अब तू सो जाएगी गहरी नींद। और ज़रा देर बाद चंपा के होठों को फिर हरकत हुई। सो जा मामला, सो जा, तुझे नींद आ रही है, तू सो रही है। और यही अल्फाज सुनते सुनते मेरी पलकें बोझल होने लगी और फिर जाने कब मैं गहरी नींद सो गई। मालूम नहीं कि मैं कब तक इसी तरह सोती रहती कि किसी ने गहरी नींद से झंझोड़ कर मुझे जगा दिया। माबला जी उठिए, जल्दी उठिए। ये दुलारी की आवाज़ थी। सोने दो, अभी मुझे सोने दो। मैंने आंखें खोले बगैर करवट बदल ली और दुलारी की आवाज़ मैंने पहचान ली थी। दुलारी ने एक मर्तबा फिर मुझे झंझोड़ डाला और तेज आवाज़ में कहने लगी, ये सोने का वक्त नहीं है मामला जी, भगवान के लिए उठ जाए। और मैंने मजबूरन आंखें खोल दी। मेरे जहन पर अब तक नींद का शदीद गुब्बार छाया हुआ था, लेकिन दुलारी के वहशतज़दा चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे एहसास हो गया कि कोई गैर मामूली बात ज़रूर है। और उसी वक्त मैंने धमाकों की आवाज़ें सुनी जो कहीं करीब से ही आ रही थीं। ये धमाके कैसे हैं? और ये मैं कहते उछल कर बैठ गई। और तंजीम के अरकान और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है और पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया है। दुलारी ने तेजी से बताया। तुम्हें कैसे मालूम? मैं खुद देख कर आई हूँ और हमारे लिए भी यहाँ खतरा हो सकता है। बेहतर यही है कि मामला जी, हम फ़ौरन यहाँ से निकल चलें। और अपना सामान समेट कर मैंने अटैची में रख लिया। अब देर ना करें। दुलारी से ये सुनकर मेरी नींद भाग गई कि मैं तेजी से उठी और भागती हुई कमरे से निकली और मुंह धोकर लिबास तब्दील करने और सामान समेटकर एक सूटकेस के अंदर भरने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। और मेरे पास 3 सूटकेस थे और जिनमें से एक मैंने दुलारी को थमा दिया। और जब हम घर के दरवाजे पर ताला लगा के तेज कदमों से वह गली अबूर कर रहे थे तो उसी वक्त तक फायरिंग की आवाज़ रुकी नहीं थी और अभी तक मंजिल का तयन भी नहीं हुआ था कि हमें कहाँ जाना है। और यही सवाल मेरी जुबान पर भी आ गया। ठिकाने तो बहुत है पर इस समय सबसे महफूज जगह करोल बाग की कोठी है और मैंने सोचा किसी होटल का रुख भी किया जा सकता है। फिर भी अपने इस ख्याल का इजहार मैंने दुलारी से नहीं किया। मेरे नज़दीक इस वक्त तो मुझे जहाँ ले जा रही थी वहीं जाना बेहतर है और फौरी तौर पर तंजीम से राब्ता तोड़ना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। और उसकी बड़ी वजह सीक्रेट सर्विस का सरबराह विलियम राइट था और जिस इमारत पर पुलिस ने छापा मारा था और जहां पुलिस तंजीम के अरकान का मुकाबला जारी था उसी इमारत के तय खाने में विलियम कैद था। और सलार अकबर के अलावा आदल और तंजीम के दीगर अरकान भी विलियम की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो इस इमारत में विलियम को छोड़कर फरार नहीं हो सकते थे। और तंजीम से फ़िलहाल मेरा राब्ता मुंतक़े हो जाता तो मुझे विलियम के मुतल्लक पता न चलता कि उसे इमारत से निकाल कर किसी दूसरी महफूज जगह पहुंचाया गया या नहीं। और उसे कतई नज़र मुझे सलार अकबर का भी ख्याल आया जो गुज़श्ता शब के मार्के में गोली लगने से ज़ख्मी हो चुका था। दुलारी के साथ मैं एक सड़क पर निकल आई और जल्दी ही एक खाली टैक्सी मिल गई। करोल बाग की इस कोठी से पहले ही दुलारी ने टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया और अब हम पैदल एक तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। खासी दूर पैदल चलने के बाद दुलारी एक कोठी के फाटक पर रुक गई और मैंने दाएं जानब कॉल बेल लगी देख ली, मगर दुलारी ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और मखसूस अंदाज में 2 मरतबा फाटक पर दस्तक दी। कौन बदमाश है? अंदर से भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हम तुम्हारे दुश्मन हैं यार लोगो, दुलारी ने जवाब दिया। भाग जाओ यहाँ से। और इन अल्फाज के साथ ही फाटक का जैली दरवाज़ा खुल गया और मैं समझ चुकी थी कि ये शनाख्ती अल्फाज थे। दुलारी के साथ जैली दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हो गई और हमारे अंदर पहुँचते ही जैली दरवाज़ा फिर अंदर से बंद कर लिया गया। दरवाज़ा बंद करने वाला एक मसला शख्स था और उसने मुड़ते ही दुलारी से पूछा, दुलारी क्या ये खबर सही है कि पहाड़गंज वाले ठिकाने पर पुलिस से टकराव हो गया है? हाँ रंजीत, हम पहाड़गंज से ही आ रहे हैं। और दुलारी ने जवाब दिया और फिर दरियाफ्त किया, तुम्हें ये खबर कब मिली?
तकरीबन आधा घंटा पहले रंजीत ने बताया कि जब सरफरोशों का एक दस्ता यहाँ से पहाड़गंज के लिए रवाना किया गया और वो लोग इतनी तेजी से निकले कि मैं तफसील मालूम ना कर सका। कोठी में सलार गुरबचन सिंह मौजूद हैं और उनसे तफसील मालूम हो सकती थी, मगर जाहिर है कि मैं यहाँ से नहीं हट सकता था और मुझे भी तफसील मालूम नहीं, क्योंकि मैंने दूर ही से जायजा लिया था और मैं बस इतना ही देख सकी कि पुलिस और हमारे सरफरोशों के दरमियान मसला तसादम जारी था। फिर दुलारी ने रंजीत से मेरा तारुफ कराया और रंजीत ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे ताज़ीम दी। माबला जी का नाम सुना है, नाम ही नाम सुना था, आज देख भी लिया। और रंजीत ने पुरखलूस लहजे में कहा और फिर बराह रास्त मुझसे मुखातब हुआ। आपने कुछ अरसा पहले जिन पर आपकार किया था उनमें से एक मैं भी हूँ। और फिर उसने बताया कि सरफरोश तंजीम के मुतालबे पर जिन इनकारकान को रिहाई मिली थी, रंजीत भी उनमें से एक था। और उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर कहने लगा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मैंने अजहार इनकसारी किया। ये तो बस हमारे ही दिल जानते हैं देवी जी कि आप कितनी महान हैं। चलिए माबला जी, अंदर चलकर सलार गुरबचन सिंह जी से मालूम करते हैं कि अब पहाड़गंज वाले ठिकाने की क्या सूरत हाल है। और दुलारी ने मुझे मुखातब किया, क्या उन्हें मालूम होगा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, फ़ोन पर सलार का वहाँ से राब्ता कायम होगा, दुलारी ने बताया। और फ़ोन वहाँ भी है और यहाँ भी। फिर तो फ़ोन पर ही वहाँ से पुलिस के छापे की इतला यहाँ दी गई होगी। मैं दुलारी के साथ आगे बढ़ते हुए बोली, जी मामला जी। दुलारी ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। फिर दुलारी के साथ मैं इमारत के सदर दरवाजे पर पहुँच गई और वहाँ भी काल बैन होने के बावजूद दुलारी ने उसी मखसूस अंदाज में दस्तक दी जो फाटक खुलवाने या रंजीत को मतवज्जा करने के लिए मैंने पहले भी सुनी थी। शिनाख्ती अल्फाज का तबादला हुआ और जो पहले अल्फाज से मुख्तलिफ था, और बहरहाल दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खोलने वाली एक औरत थी। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए तो उस औरत को दुलारी ने मुखातब किया, रशीदा, सलार गुरबचन सिंह जी कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में है। और उस औरत रशीदा ने बताया, जिसकी उम्र 30 साल के करीब लगती थी। ठीक है, हमारा सामान यहीं रखा है और हमें पहले सलार से मिलना है, वापस आकर सामान उठा लेंगे। दुलारी ने अपनी अटैची और मेरा एक सूट केस एक दीवार से लगाकर रख दिया और मैंने भी दुलारी की तकलीद की और अपने बकिया दोनों सूट केस भी करीब ही रख लिए। आइए मामला जी, दुलारी ने कहा और मेरी रहनुमाई करने लगी। एक राहदारी से गुजरकर दुलारी दाएं जानब मुड़ी और एक कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई और मैंने वहां एक सरदार जी को बेचैनी से कमरे में टहलते देखा और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वही सलार गुरबचन सिंह होगा। और ज़रा ही देर बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई जब दुलारी ने उससे मेरा तारुफ कराया और वह शख्स हमें देखते ही टहलते टहलते रुक गया। मामला जी, आप तशरीफ़ रखिए। सलार गुरबचन सिंह ने तारुफ के बाद एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और फिर कहने लगा, माफ़ कीजिएगा मामला जी, इस वक्त मैं कुछ अज़तराब की हालत में हूँ। दरअसल मुझे एक फ़ोन का बेचैनी से इंतज़ार है और अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक तरफ मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजने लगी और वह टेलीफोन की तरफ लपका और रिसीवर उठाते ही बोला, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, कमक पहुँच गई। ठीक है सलार, आप पुलिस का घेरा तोड़ कर निकलने की कोशिश करो। क्या? फिर तो मजबूरी है, छोड़ दे उसे वहीं। हाँ, मुमकिन है पुलिस रास्ता तलाश न कर सके। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर उसने रिसीवर रखकर तवील सांस लिया। अब उसके चेहरे से किसी कदर इत्मीनान झलकने लगा और वह मेरे और दुलारी के सामने आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो इससे पहली मर्तबा मिली थी और इसलिए खामोश रही। अलबत्ता दुलारी बोल उठी, सलार जी, पहाड़गंज की क्या खबर है? हमारे ताज़ा दम सरफरोशों का एक दस्ता वहां पहुंच गया और उसने पीछे से पुलिस पर हमला कर दिया है। और सलार गुरबचन सिंह बताने लगा कि पुलिस की तवज्जो अब दो तरफ हो गई है और उम्मीद यही है कि हमारे जो सरफरोश इमारत के अंदर है वो इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और पुलिस का घेराव तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कि आपकी बात फ़ोन पर सलार अकबर से हो रही थी? मैंने तस्दीक चाही। जी हाँ। क्या सलार अकबर अपने साथ विलियम राइट को भी निकाल कर ला रहे हैं? मैंने दरियाफ्त किया। जी नहीं, विलियम को मजबूरन तय खाने में ही छोड़ना पड़ेगा और सूरत हाल कुछ ऐसी है, सलार अकबर के साथ एक लाश और 2 जख्मी भी हैं। खुद सलार अकबर भी
गुज़श्ता रात आपके साथ जख्मी हो चुके थे और ऐसी सूरत में विलियम को साथ लाना मुमकिन नहीं रहा। और फिर यह कि पुलिस ने अचानक छापा मारा और इमारत में जो सरफरोश मौजूद थे उन्हें पुलिस से भिड़ जाना पड़ा और उनमें से किसी को तय खाने में जाने की मोहलत नहीं मिल सकी। हाँ, वो सरफरोश जो विलियम के पास था उसे पुलिस से मुकाबले के लिए ज़रूर ऊपर बुलवा लिया गया। और सलार गुरबचन सिंह ने वजाहत की। मालूम नहीं क्यों ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया और मेरे ख्याल में पुलिस इमारत के अंदर दाखिल होकर तय खाने का रास्ता तलाश कर सकती थी। सलार पुलिस के इस छापे के पीछे क्या अवामल कारफरमा हो सकते हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने सवाल किया। फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत बड़े पैमाने पर तंजीम के खिलाफ कदम उठाने वाली थी और इस खिलाफ तवक्का छापे को पहला कदम समझा जा सकता है। सलार गुरबचन सिंह के इस जवाब से मैं मुतमिन न हो सकी और उसी वक्त मेरे ज़हन में सोते सोते अचानक जाग उठने का वाक़या ताज़ा हो गया। और ये अहम वाक़या मेरे जहन से बिल्कुल महू हो गया था और शायद उसकी वजह यह थी कि फिर गहरी नींद सो गई थी। और जब से मुझे दुलारी ने जगाया था अब तक मुझे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं मिली। और कलकत्ते में जब मैंने डिसूजा को वाह किया था उस वक़्त भी चंपा ने उसे इसी तरह आंखों में आंखें डालकर मेरा जहन पढ़ लिया था और तब मैं पूरी तरह बेदार थी, इसलिए फौरी तौर पर उसका तोड़ कर लिया। मगर इस मर्तबा ऐसा नहीं था और चंपा ने अचानक मुझे सोते से जगाकर अपने शहर में ले लिया और फिर गहरी नींद सुला दिया। इस तरह यकीनन उसे यह भी मालूम हो गया था कि विलियम को इस इमारत के तहखाने में कैद किया गया था। ऐसी सूरत में पुलिस बाआसानी विलियम को तलाश कर सकती थी और विलियम को मेरी गिरफ्त से निकाल लेना मुझे नुकसान पहुंचाने के अलावा बड़े महाराज चंद्र मोहन की अंग्रेज हुकूमत से साज बात का नतीजा भी था। और इसका इल्म मुझे कलकत्ते ही में हो गया था कि बड़े महाराज को हुकूमत वक़्त की पुष्ट पनाही हासिल है और दिल्ली से डिसूजा को यह हुक्म मिला था कि बड़े महाराज के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए। अंग्रेज हुकूमत चंद्र मोहन या मुझसे टकराव की सूरत में वो तीनों एक दूसरे के मददगार साबित हो सकते थे और यूं विलियम की बाजियाबी के सिलसिले में बड़े महाराज की दासी चंपा का सरगर्म हो जाना समझ में आता था। मेरा जहन कड़ियाँ जोड़ने में मसरूफ था और चंपा को इल्म था कि सयान स्टेट गेस्ट हाउस में मुकीम है और चंपा खुद मुझे अपने शहर में गिरफ्तार करके सयान के पास स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर छोड़ गई थी। और मेरे फरार के बाद सयान और चंपा दोनों ही ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं सयान पर हाथ डालने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल होने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और सयान ने इसीलिए स्टेट गेस्ट हाउस की सुकूनत तरक कर दी थी और उसकी जगह विलियम राइट ने ले ली। आज सुबह चंपा के इल्म में यह बात आई होगी कि सयान के मेकअप में विलियम राइट को सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद स्टेट गेस्ट हाउस से अगवा कर लिया गया तो लाजमन उसने मुझ पर ही शक किया होगा और उसी के बाद मुझ तक पहुंची और मेरा जहन पढ़कर उसने सब कुछ मालूम कर लिया। तंजीम की पहाड़ गंज वाली इमारत पर पुलिस का अचानक छापा उसी का नतीजा था और मैं तो अब ख्यालों में खोई रही और दुलारी सलार गुरबचन सिंह से गुफ्तगू करती रही और मैं ये गुफ्तगू जैसे सुनकर भी नहीं सुन रही थी। उसी गुफ्तगू के दौरान दुलारी ने सलार गुरबचन सिंह को यह भी बता दिया कि बतौर एहतियात वो मुझे पहाड़गंज से ले आई है और सलार गुरबचन सिंह ने उस पर दुलारी के दूर अंदेशी को सराहा और अब जब तक दिल्ली में है यहीं क़याम कीजिए। और सलार गुरबचन सिंह मुझसे मुखातब हुआ। जी हाँ, मैं सोचूंगी, फ़िलहाल तो खैर मैं यहीं हूँ। आप अगर आराम करना चाहे तो दुलारी उसका बंदोबस्त करा देगी। मुझे आराम से ज़्यादा सलार अकबर और दूसरे सरफरोशों की फ़िक्र है। और ये कहते मुझे ख्याल आया कि सलार गुरबचन सिंह ने एक लाश का जिक्र भी किया और मैं इसीलिए उससे पूछा, शहीद होने वाले सरफरोश का नाम मालूम हुआ? जी हाँ, वो हमारा बड़ा सरगर्म रुकन था, सलार गुरबचन सिंह ने जवाब दिया। और फिर सलार गुरबचन सिंह ने जो नाम बताया उसे सुनकर मुझे बहुत मलाल हुआ और बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, नहीं। और पुलिस से मुकाबले के दौरान में मारा जाने वाला रघुवीर था और आखिरी बार मैंने उसे उस वक़्त देखा जब तय खाने से मेरे साथ बाहर आया था और तब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं आखिरी मर्तबा उसे देख रही हूँ। चंद रोज़ा रफाकत में उससे मैं खासी मायूस हो गई थी और यही वजह थी कि मैं कुछ देर सदमे की हालत में खामोश बैठी रही। सलार गुरबचन सिंह ने मेरी कैफियत का शायद अंदाज़ा लगा लिया और बोला, आपको इस खबर से यकीनन धचका लगा है। जी, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी।
रघुवीर ने एक अजीम मकसद के हसूल की राह में अपनी जान कुर्बान की है और मुझे यकीन है कि उसका लहू रायगा नहीं जाएगा। और सालार गुरबचन सिंह की आवाज़ पुरजोश थी। सालार, क्या आपको ये इतला भी फ़ोन पर ही मिलेगी कि आपके सरफरोश पुलिस का घेराव तोड़कर फरार हो चुके हैं? मैंने मालूम किया। नहीं, उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सालार गुरबचन सिंह ने जवाब दिया, पहाड़गंज वाली इमारत से फरार होने वाले सरफरोश का एक ग्रुप यहाँ आएगा और दूसरा ग्रुप एक और महफूज जगह ठिकाने का रुख करेगा और जिन लोगों को यहाँ पहुँचना है उनसे तफसीलात का इल्म हो जाएगा। मैंने मुतअम्मिन अंदाज में सर हिला दिया। मुझे वहां पहुंचे अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। और माफ़ कीजिएगा मामला जी, मैंने अब तक आपसे चाय भी नहीं पूछा। और सालार गुरबचन सिंह बोला और फिर उसने दुलारी को मुखातब किया, तुम चाय के लिए किचन में कह आओ, मैं भी पी लूँगा। और इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है सालार? मैंने कहा ना, मुझे भी चाय पीना है, जाओ दुलारी। और दुलारी उठकर चली गई। अभी दुलारी लौटकर नहीं आई थी कि सालार अकबर, आदिल और समीउल्लाह वहां पहुंच गए और उनके चेहरों से हुज़्न मलाल का इज़हार हो रहा था। और उसका सबब रघुवीर की मौत ही हो सकती है। रघुवीर की अचानक मौत से जब मुझे इतना दुख हुआ था तो मरने वाला उन्हें दुखी क्यों ना कर जाता। वो तो उनका पुराना वफादार साथी था। मामला, आपने ये अच्छा किया कि यहाँ आ गए। सालार अकबर मुझे से मुखातब हुआ और फिर मुझे विलियम के बारे में बताने लगा और मजबूरन उसे वहाँ छोड़ना पड़ा। मुझे मालूम है, मैं बोल उठी और सालार गुरबचन सिंह की तरफ इशारा करके मजीद बोली। सालार ने मुझे सूरत हाल से आगाह कर दिया था। आप मुतमिन रहे मामला, हम आज रात विलियम को उस इमारत से तय खाने से निकाल कर यहाँ ले आएंगे। सालार अकबर ने मुझे दिलासा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं सालार, क्योंकि ये कोशिश ला हासिल होगी और मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस ने अब तक उस तय खाने से निकाल लिया होगा। ये आप क्या कह रही हैं मामला? और पुलिस तय खाने तक किस तरह पहुंच सकती है? सालार अकबर ने हैरत का इज़हार किया। इसलिए कि सालार के पुलिस ने विलियम की बाजियाबी ही की घर से छापा मारा था और पुलिस को ये इल्म कैसे हो सकता है कि विलियम को अगवा करने के बाद इस इमारत के तय खाने में रखा गया? और ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा क्यास यही है। आपके पास अगर ऐसे ज़राए हों तो मेरे क्यास की तस्दीक भी मुमकिन है। ज़राए से आपकी क्या मुराद है? सालार अकबर ने पूछा। मेरा ख्याल है कि विलियम को शहर के किसी बेहतरीन हस्पताल ले जाया गया होगा और वहाँ इंतहाई निगाहदाश्त के शोबे में रखा गया होगा। वजह यह है कि वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में था और उसी के साथ वहाँ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम होंगे और ये मालूम करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सालार अकबर ने कहा और फिर शहर के एक अस्पताल का नाम लिया। वहाँ जदीद तरीन तबी सहूलतें मौजूद हैं और अगर आपका क्यास दुरुस्त है तो फिर विलियम को वहीं ले जाया गया होगा। और ये कहते ही सालार अकबर अपनी जगह से उठा और फ़ोन पर किसी के नंबर डायल करने लगा। नंबर शायद मिल गया था और इसीलिए सालार अकबर किसी से कह रहा था, मैं अकबर बोल रहा हूँ, अकबर अली, और मुझे डॉक्टर शर्मा से बात करनी है। जी वो अभी अभी ICU की तरफ गए हैं। बेहतर है, आप कौन सा बोल रहे हैं? मोहतरम, आपको जहमत तो होगी, मेरा फ़ोन नंबर लिख लें और डॉक्टर शर्मा तक मेरा यह पैगाम पहुँचा दें कि पहली फुर्सत में मुझ पर फ़ोन से बात कर लें। जी लिखिए। सालार अकबर ने फ़ोन पर नंबर बताया और फिर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जो दूसरी तरफ से बोल रहा था और उसके बाद वह रिसीवर रखकर अपनी जगह आ बैठा। इस दौरान दुलारी भी चाय के लिए कहकर वापस आ चुकी थी और उसने सालार अकबर वगैरह को भी आते देख लिया और उनके लिए भी चाय लाने को कहने गई। दुलारी ने खुद ही ये बात बताई थी कि मैंने सालार अकबर को मुखातब किया। आपने जिस अस्पताल का नाम लिया था गालिबन उसी के किसी डॉक्टर से फ़ोन पर राब्ता कायम करना चाहा था। जी हाँ मामला, ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो सरफरोश तंजीम के लिए अपने दिलों में नरम गोशे रखते हैं और दामे दरमे सुखने हर तरह हमारे काम आते रहते हैं। और ये लोग हमारी तंजीम के बाकायदा रुकन ना होने के बावजूद हमारे लिए एक सरमाए की हैसियत रखते हैं और डॉक्टर शर्मा भी इन्हीं लोगों में शामिल है। फिर तो उस पर एतमाद किया जा सकता है और आप जो चाहें तो उसे मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बराह रास्त उससे विलियम राइट के बारे में दरियाफ्त कर सकता हूं और शर्त सिर्फ ये है कि आपका क्यास दुरुस्त हो और विलियम को उसी अस्पताल में ले जाया गया हो। डॉक्टर शर्मा का शुमार उस शहर के अच्छे डॉक्टरों में होता है और वो एक बेहतरीन सर्जन भी है और मैंने उसका वो फ़ोन नंबर मिलाया था जिस पर बराह रास्त उससे बात हो सकती थी। बहरहाल मेरा पैगाम मिलते ही वह फ़ोन करेगा।
सलार, आपने इस बात पर शायद गौर नहीं किया कि इस इमारत से विलियम की बाजियाबी से कुछ और मसले भी पैदा हो सकते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरा क्यास गलत है। पुलिस ने विलियम की बाजियाबी के लिए उस इमारत पर छापा नहीं मारा, फिर भी पुलिस के पास छापा मारने का कोई तो जवाब होगा, और उससे कतई नजर पुलिस से मुकाबले के बाद इस इमारत में मौजूद अफराद फरार हो गए। जाहिर है कि वो इमारत तंजीम ही के किसी अहम रुकन की मलकियत होगी, और इस वाक़े के बाद क्या पुलिस तंजीम के उस रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी? इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं मामला जी। इस मर्तबा मेरी बात के जवाब में सलार गुरबचन सिंह बोल उठा। हम किसी ऐसी सूरत हाल के लिए पहले ही से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हैं। वो इमारत एक हिंदू बेवा की मलकियत है और जिसका तंजीम से कोई तलक नहीं। काफ़ी अरसा कबल उस इमारत को किराए पर हासिल किया गया था और किराया नामा एक फर्दी नाम पर है, और पुलिस जब उस हिंदू बेवा औरत से पूछ गुछ करेगी तो वह पुलिस को सिर्फ एक फर्जी नाम ही बता सकेगी, इसके सिवा कुछ और नहीं। और ऐसी सूरत में जाहिर है कि हमारे लिए किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं। और वो तय खाना, क्या वो भी इमारत में पहले से मौजूद था? मैंने दराफत किया। जी नहीं, तय खाना खुद हमने बनाया था और इसका इल्म भी उस औरत को नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वाकई आप लोगों के लिए कोई खतरा नहीं। और मैंने अपने इत्मीनान का इजहार किया, और इसी दौरान में एक शख्स बड़ी सी ट्रे में चाय के कप लेकर आ गया। मामला, मुझे पिंडर जी से विलियम राइट की कुव्वत इरादी के बारे में जानकर बड़ी हैरत हुई। शायद ही कोई शख्स इतना तशद्दुद बर्दाश्त कर सके। सलार अकबर मुझसे बोला। हाँ सलार, खुद मैं भी हैरान हूँ कि वह शख्स किस मिट्टी का बना हुआ था, और मैंने ये कहकर गोया शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी और सलार अकबर ने अपनी चाय की प्याली सेंट्रल टेबल पर रखी और उठकर फ़ोन रिसीव किया। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, डॉक्टर शर्मा। और फिर सलार अकबर ने बराह रास्त विलियम राइट के बारे में पूछा, और दूसरी जन्म से बात करने वाला डॉक्टर शर्मा ही मालूम होता था। हालत नाजुक है। ठीक है, बताऊंगा फिर। हाँ ये दुरुस्त है, वो आला अंग्रेज हकाम में से है। जी नहीं, अच्छा। सलार अकबर ने मजीद कुछ देर गुफ्तगू के बाद रिसीवर रख दिया और फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठते मुझसे मुखातब हुआ। आपका क्यास हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। मामला, विलियम अस्पताल में है और उसकी हालत तशवीशनाक है, मगर डॉक्टर शर्मा का कहना है कि उसे बचाया जा सकता है। सबसे खतरनाक जख्म माथे पर है और माथे की हड्डी मुतासर है। बहरहाल वो जिंदा बचे ना बचे, उसे कतई नजर पुलिस का तय खाने तक पहुंच जाना और वहां से विलियम को निकाल कर ले आना ताज्जुब खेज बात है। सलार अकबर गलत नहीं कह रहा था और मैं खुद तय खाने में जा चुकी थी। किसी नावाकिफ शख्स के लिए जो पहले वहां ना गया हो, उसके अंदर दाखिल हो जाना कुछ नामुमकिन सी बात थी। और सलार गुरबचन सिंह ने भी इसी बात पर हैरत का इजहार किया। और मैं इस वक्त ये सोच रही थी कि विलियम का मेरी गिरफ्त से बचकर निकल जाना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक था, और मेकअप के बगैर अब मेरा बाहर निकलना किसी भी वक्त मुझे किसी खतरे से दो चार कर सकता था। इसके अलावा उस कोठी में मेरा क़याम भी खाली अज इल्लत नहीं था, और लानती चंपा वहां मेरे लिए कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकती थी जो मेरे लिए जिल्लत और रसवाई का सबब बन जाती, और इससे तो पहाड़गंज वाले मकान में मेरा क़याम बेहतर था। अब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी कि पुलिस को अगर इस मकान पर भी छापा मारना होता तो बीक वक्त वहां भी छापा मार सकती थी, और पुलिस के छापे का मकसद महज विलियम की बाजियाबी ही था, और जिसमें उसे कामयाबी हासिल हो गई। और मैंने अपने इस ख्याल का इजहार सलार अकबर से भी कर दिया, और बहरहाल इस कोठी में रहना नहीं चाहती थी। अगर आप अलग ही रहना चाहती हैं मामला, तो किराए पर भी किसी मकान का बंदोबस्त तो इस इलाके में भी हो सकता है। मेरा मकसद दरअसल ये है कि आप लोगों से ज़्यादा दूर ना रहें, और ताकि आप लोगों की हिफाजत और निगरानी हमारे लिए आसान रहे। और ऐसा मुमकिन है तो मुझे इसी इलाके में रहने पर भी कोई एतराज़ नहीं, और दुलारी मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर ठीक है मामला, कल तक किराए के किसी मकान का बंदोबस्त हो जाएगा, और फिर पहाड़गंज वाले मकान में जो फर्नीचर वगैरह है वो भी नए मकान में मुंतकिल हो जाएगा कल तक। और गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया। दरअसल मैं एक रात के लिए भी खतरा मुंह लेने से गुरेज कर रही थी। क्यों, क्या हुआ मामला? एक रात तो आप यहाँ गुजार ही सकती हैं, सलार अकबर कहने लगा। मामला जी, यहाँ कोई खतरा नहीं, आप हर तरह से महफूज रहेंगी। और सलार गुरबचन सिंह ने भी मुझे समझाया। और सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरा मजीद इनकार उन लोगों पर बेएतमादी का इजहार करता, और मैंने इसीलिए वक्ती तौर पर उनकी बात मान ली। उन लोगों के साथ मैं एक रात पहाड़गंज वाली इमारत में भी गुजार चुकी थी।
बहरहाल मेरे लिए इस कोठी में एक कमरे का बंदोबस्त हो गया। निशस्त गाह से उठकर मैं दुलारी के साथ उस कमरे में आ गई और दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने के लिए मैं बिस्तर पर लेट गई। इससे पहले मैंने लिबास तब्दील किया और कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद करना नहीं भूली थी। बिस्तर पर लेटने के बाद मैं नई सूरत हाल पर गौर करने लगी और मेरा दुश्मन सयान एक बार फिर मेरी नज़रों से उजल हो चुका था और अब मुझे दोबारा उसे तलाश करना था। और यही सोचते मेरे जहन पर गनूदगी छाने लगी और मैं सो गई। शाम को जब मैं सोकर उठी तो दुलारी मेरे लिए चाय ले आई और सोकर उठते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। चाय पीने के बाद मैंने उठकर लिबास तब्दील किया और दुलारी चाय का खाली कप लेने आ गई। कुछ सोचते हुए मैंने दुलारी से सलार अकबर के बारे में पूछा और वो भी इसी कोठी के कमरे में है। दुलारी ने बताया और मुझे वहां पहुंचा दो और मैं कप किचन में रखकर अभी आती हूँ मामला जी, और फिर आपको सलार के कमरे में पहुंचा दूंगी। दुलारी लौट कर आई तो मुझे साथ लेकर सलार अकबर के कमरे में पहुंच गई और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर भी वह बगैर इजाज़त अंदर दाखिल नहीं हुई। आइए मामला आइए, सलार अकबर ने पुरखलूस अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। मैं जाऊं मामला जी, दुलारी ने मुझसे मालूम किया। हाँ जाओ, और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उस कमरे तक आते हुए रास्ते को मैंने जहन में रखा और कमरे में चंद कुर्सियां और उनके दरमियान छोटी सी एक मेज़ भी पड़ी थी और मैं सलार अकबर के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। आपके लिए इसी इलाके में मकान का बंदोबस्त हो गया है और कल कब्जा मिल जाएगा। मकान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अगली ही गली में है और ज़रूरत से कुछ बड़ा है वो मकान, मगर मजबूरी है और अगर कोई और मकान आसपास खाली नहीं, सलार अकबर ने बताया। ये अच्छा हुआ कि इस कोठी के करीब ही मकान मिल गया और मैंने इत्मीनान का इजहार किया और फिर वो जिक्र छेड़ दिया जिसके लिए उससे मिलने आई थी। आप ठीक कहती हैं मामला, सयान का सुराग लगाना ज़रूरी है और मैं इस सिलसिले में आज ही ज़रूरी हदायत जारी कर दूंगा, आप मुतमिन रहें। सलार अकबर ने मुझे यकीन दिला दिया और सयान का सुराग लगने के बाद फिर एक महम दरपेश होगी। ज़ाहिर है मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस महम में आपका साथ नहीं दे सकूंगा और पहले उसका सुराग तो लग जाने दे, क्या खबर उस वक़्त तक आपकी टांग का जख्म ठीक हो जाए। और मेरा ख्याल है कि सयान का सुराग लगने में इतनी देर नहीं लगेगी। सलार अकबर से रुखसत की इजाज़त चाहिए। चाय मंगाऊँ आपके लिए मामला? शुक्रिया, अभी पी कर आई हूँ, और ये मैं कह कर उठ खड़ी हुई। मैं वापसी में एक राहदारी से गुजर रही थी। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे अंदर घसीट लिया और मैं ज़हनी तौर पर इस गैर मुतवक्का आफताब के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए अपनी मदाफ़त न कर सकी और मुझे कमरे में घसीटते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। और जैसे ही मेरी नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी जिसने मुझे कमरे से घसीट लिया था और मेरे ज़हन को झटका लगा। दुलारी का महबूब सलीम मेरे सामने खड़ा था और उसके होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। सलीम की वहां मौजूदगी मेरे लिए हैरान कुन थी और मुझे उसके तेवर अच्छे मालूम नहीं हो रहे थे। मामला, अब तुम खुद ही बिस्तर पर आकर लेट जाओ, और उसने कमरे में मौजूद मसहरी की तरफ इशारा किया। यह क्या बदतमीजी है, मैं गुस्से से चीख उठी। और इससे बदतमीजी नहीं, दिल लगी कहते हैं जाने मन। उसके लहजे में घटियापन था। ज़रा इधर तो देखो इन आंखों में और तुम्हें अपनी ही तस्वीर नजर आएगी। और मैंने उसकी तरफ कहर अनुद नजरें उठाई। मालूम नहीं इस वक्त मेरे ज़हन से किस तरह ये बात महू हो गई कि लानती चंपा मुझे वार करने के लिए सलीम को अपना कालाकार बना सकती है। और मेरी नज़रें सलीम की नज़रों से मिली ही थीं कि मुझे अपने ज़हन पर एक गिरफ्त का एहसास हुआ। अब तू वही करेगी मामला जो तुझसे सलीम कहेगा। और मेरे ज़हन में चंपा की आवाज़ गूंजी। यकीनन वह सलीम के ज़रिए मुझ पर अपने शहर में ले चुकी थी और चंपा की आवाज़ अब भी मेरे ज़हन में गूंज रही थी। मामला, आज तू बहुत दिन के बाद मेरे काबू में आई है और मैं तुझे खराब किए बगैर नहीं छोड़ूंगी और मैं खुद भी ये तमाशा देखने आ रही हूँ। चंपा की आवाज़ मालूम हो गई तो सलीम ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मसहरी की तरफ बढ़ने लगा और मेरे अंदर एक कशमकश जारी थी और मैं सोच रही थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बावजूद अपने इरादे पर अमल करने से कासर थी। मेरा जिस्म मेरे इरादों का पाबंद नहीं रहा था। सलीम ने मुझसे लेट जाने को कहा और फिर अपने हुक्म की तामील होते ही खुद भी लेट गया और दूसरे ही लम्हे वो मुझे खुद से करीब कर चुका था। ऐन उसी लम्हे चंपा मसहरी के करीब नमूदार हुई। उसने मुझे हंसते हुए मुखातब किया, तूने देख लिया मामला कि मैंने तुझे किस तरह बेबस कर दिया। बोल, अब तेरी पुरअसरार कुव्वतें कहाँ गई? तुझे कौन बचाने वाला है? और कमरे में चंपा की आवाज़ गूंजने के बावजूद सलीम ने मुड़कर उसको नहीं देखा था और चंपा की तरफ से उसकी पुष्ट थी।
सलीम तो जैसे किसी और ही जहान में पहुंचा हुआ था और उसकी ख्वाबनाक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तुम कितनी हसीन हो माबला, और पुरस्तश की हद तक हसीन। और उसकी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से कांप रही थी। और फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। नहीं, कोई जैसे मेरे अंदर चीख उठा, और उसी के साथ मैंने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत सिर्फ करके सलीम को पीछे धक्का दे दिया, मगर दूसरे ही लम्हे वो फिर मुझ पर छा गया। उसी वक्त अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन सलीम ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मामला आने वाला जो भी हो, उसे ये हसीन मंजर जरूर देखना चाहिए। और चंपा मुझसे मुखातब हुई, और फिर आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोल दिया, और उसी के साथ मेरी नज़रों से ओझल हो गई। यकीनन चंपा मुझे इस तरह ज़लील और रुसवा करना चाहती थी। और मैंने दरवाजे से दुलारी को अंदर आते देखा, और चंद लम्हों को कमरे का मंजर देखकर उसे शायद सकता सा हो गया। और कुछ ही फासले पर वो गुमसुम सी तस्वीर हैरत बनी खड़ी थी। उसकी नजरें में सहरी की तरफ उठी हुई थी, और वह शायद पलके झपकाना तक भूल गई। सलीम, दुलारी अचानक पूरी कुव्वत से चीख उठी, ये तुम क्या कर रहे हो? जो तुम देख रही हो, सलीम ने हिजान खेज आवाज में जवाब दिया। बेवफा, और दुलारी ये कहती हुई सलीम की तरफ झपटी। सलीम ठीक कह रहा है दुलारी, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी, हालांकि मेरी होंठ बेहरकत थे। यानी लानती चंपा मेरी आवाज़ में दुलारी से मुखातब थी। माबला जी आप भी? और दुलारी मसहरी के करीब आकर ठटक गई। हाँ दुलारी, मैं भी सलीम को चाहती हूँ। और मेरी आवाज़ में चंपा फिर बोली। नहीं नहीं माबला जी, दुलारी ने बुलंद आवाज़ में कहा, आप मेरी मोहब्बत पर डाका नहीं डाल सकती। ये मेरा मर्द है, और आप इसे मुझसे नहीं छीन सकती। ये सरासर जुल्म है, और मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं। फिर मैंने दुलारी को सलीम पर झपटते देखा, और वह सलीम से उलझ पड़ी थी। उसने सलीम के सर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और उन्हें झटका दिया, और सलीम ने दुलारी से अपने सर के बाल छुड़ाने की खातिर अपना एक हाथ उठाया, और फिर उसने झुकी हुई दुलारी के पेट में कोहनी मारी, और दुलारी के मुंह से चीख निकल गई। उसी के साथ उसने सलीम के बाल छोड़ दिए थे। उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ मेरे समाज से टकराई। कोई दुलारी की चीख सुनकर उसी तरफ भागता हुआ आया था, और मैंने यही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें लम्हा बे लम्हा करीब होती जा रही थीं। सलीम ने मुझे एक बार फिर जकड़ लिया, और यूं लगता था जैसे उसे किसी की कोई परवाह न हो। चंद लम्हे बाद आदल दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, और उसके हाथ में रिवाल्वर था। आदल की कफियत भी कमरे में कदम रखते ही दुलारी से मुख्तलिफ नहीं हुई। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं, और इससे पहले कि आदल कुछ कहता दुलारी बोल उठी। पंडित जी ये देखो सलीम और माबला जी। और वो अपनी बात पूरी न कर सकी, और दुलारी के मुखातब करने पर आदल आलम हैरत से निकल आया था, और वह सलीम से सख्त लहजे में मुखातब हुआ। माबला को छोड़ दो सलीम, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जाओ जाओ, काम करो अपना। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? और दुलारी को भी यहाँ से अपने साथ ले जाओ, सलीम ने आदल से कहा, और फिर मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। उसने बस एक नज़र आदल पर डाली थी, और उसी लम्हे अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसाब नदीदा गिरफ्त से आज़ाद हो गए, और मैं मचल कर सलीम की गिरफ्त से निकल गई। अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया? और अभी तो चुपचाप पड़ी हुई थी। और सलीम ने मेरी कलाई पकड़ कर मुझे घसीट लिया, और मुझे उसके जिस्म में गैर मामूली कुव्वत महसूस हुई। आदल ने एक बार फिर सलीम को गोली मारने की धमकी दी, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ, और वह ये कोशिश कर रहा था कि दोबारा उसकी गिरफ्त से निकल जाऊं। और मैंने उसे इसकी कंपनी पर ज़रब लगाना चाही, लेकिन कामयाब ना हो सकी। और फिर मैंने आदल को रिवाल्वर जेब में रखते देखा, और दूसरे ही लम्हे वह सलीम पर टूट पड़ा। सलीम और आदल एक दूसरे से भिड़ गए, और अचानक न जाने क्या हुआ कि सलीम चकराकर फर्श पर गिरा, और आदल ने झुक कर उसका गिरेबान पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्या हुआ पंडित जी? तुम मेरा गिरबान क्यों पकड़े हुए हो? और सलीम के लहजे से इंतहाई हैरत का इज़हार हो रहा था। मासूम बन रहे हो अब? आदल ने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोरदार चांटा मारा, और फिर दुलारी की तरफ पलट कर बोला, इसे बताओ दुलारी कि यह अभी कुछ देर पहले कितनी जलील हरकत कर रहा था, और अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर पिंडल जी, जितना कसूर इसका है मावला जी का भी है, दुलारी बोली। और सलीम बहरहाल उसका महबूब था, और मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाकर गोया अपने महबूब की हमायत ले रही थी। और मैं समझ गई कि चंपा मेरी जिल्लत और रसवाई का पूरा बंदोबस्त करने के बाद अब वहाँ से जा चुकी है, और उसने सलीम को भी अपने शहर से आज़ाद कर दिया। क्या बकती हो तुम? आदल ने बरहम होकर दुलारी से कहा, तुम कैसे मावला पर यह इल्ज़ाम लगा सकती हो? और मावला जी ने खुद मुझसे कहा था कि वह भी सलीम को चाहती हैं।
दुलारी ने वही बताया जो चंपा की ज़बानी सुना था। झूठ बोल रही हो तुम, आदिल सख्त लहजे में बोला। मैंने तो मामला को सलीम से नमर्द आजमाई करते देखा है। तो फिर पहले मामला जी खामोश क्यों पड़ी थी? दुलारी ने बहस की। सलीम ने मामला को जकड़ रखा था, आदिल ने जवाब दिया। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? आखिर बात क्या है? और मुझे भी तो कुछ मालूम हो, और मेरा गिरबान तो छोड़ दो पिंडर जी, सलीम बोल उठा। आदिल ने सलीम को गसीली नजरों से देखते हुए उसका गिरबान छोड़ दिया और फिर बोला, तुमने मामला पर मुजरमाना हमला करके अच्छा नहीं किया सलीम। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मामला इस शहर में हमारी तंजीम की मेहमान है और उनकी जिंदगी और इज्जत व आबरू की हिफाजत हमारा फर्ज है। मुजरमाना हमला? सलीम हैरत से देख कहने लगा, और ये तुम क्या कह रहे हो पिंडर जी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मुंह पर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम मुझे झुठला नहीं सकते, और तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ सलार अकबर के पास चलना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूंगी ताकि बता सकूं कि सलीम अकेला ही कसूरवार नहीं। और दुलारी ने एक बार फिर अपने महबूब की हमायत ली। नहीं, आदिल ने सख्ती से इनकार कर दिया। तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। और फिर वह मुझसे मुखातब हुआ, आओ मामला। और मैं बदस्तूर अपनी जगह खड़ी रही, और लानती चंपा ने मेरे लिए जिल्लत और रसवाई का जो जाल बिछाया था, और मैं उसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटूं। आदिल ने जो कुछ देखा था ज़ाहिर है कि सलार अकबर को भी बताया, और यूं मेरी रसवाई में और इजाफा हो जाता। और उससे कतई नज़र एक तलख हकीकत यह भी थी कि मेरे नज़दीक वो शख्स बेकसूर था जिसने मेरी इज्जत व आबरू पर हाथ डालना चाहा था, और उसने जो कुछ किया चंपा के शहर में गिरफ्तार होकर किया था। पिंडत जी, आखिरकार मैंने आदिल को मुखातब किया, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। सलार अकबर के इल्म में ये सब कुछ आना मेरे लिए काबिल शर्म बात होगी, लेकिन मामला तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। और ज्यादती करने वाले को किस तरह माफ़ किया जा सकता है? और मैं इससे भी अपने साथ ज्यादती ही समझूंगी कि ये रूह फरसा वाक़या मजीद अफराद के इल्म में आकर मेरे लिए रसवाई का बायस बने। और मेरी बात सुनकर आदिल नरम पड़ गया और बोला, अगर ये बात है मामला तो तुम ऐसा समझ रही हो, तो फिर मैं इस बात को यही ख़त्म किए देता हूँ। लेकिन सलीम का वजूद मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। और ये क्या कर वह सलीम की तरफ मुड़ा, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अपने लिए तुम इस कोठी के सिवा कहीं भी बंदोबस्त कर लो, यहाँ अब तुम्हें कदम नहीं रखोगे। मगर पिंडत जी, क्यों? आखिर मैंने क्या किया है? और सलीम ने उलझे हुए लहजे में सवाल किया, और कुछ देर कबल जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भूल चुका था। इस बात को अब ना ही दोहराया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आदिल इस तरह बोला जैसे अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। और मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उस पर अमल करो। और सलार गुरबचन सिंह जी ने उस पर मुझसे जवाब तलब कर लिया तो मैं क्या कहूंगा? उन्हीं के हुक्म पर तो मैं यहाँ, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आदिल ने उसकी बात काट दी। तुम यहाँ से अपनी रवानगी की तैयारी करो। तुम गवाह रहना, दुलारी के पिंडर जी के कहने पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सलीम ने दुलारी को मुखातब किया, और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हारा असल रूप देख चुकी हूँ। दुलारी की आवाज़ भर्रा गई, और फिर वो तेजी के साथ जाने के लिए मुड़ी। सुनो दुलारी, सुनो तो, सलीम ने उसे पुकारा, और मैं कह चुकी हूँ कि तुमसे बात करना नहीं चाहती। दुलारी बोली और कमरे से निकल गई। और फिर मैंने वहां मजीद रुकना मुनासिब नहीं समझा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आदिल भी मेरे साथ उस कमरे से निकल आया। आखिर हुआ क्या था मामला? आदिल मेरे साथ साथ चलते हुए पूछने लगा, तुम सलीम के कमरे में कैसे पहुंच गई? मैं कहाँ गई थी उसके कमरे में? मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि उस कोठी में वो भी रहता है, और मैं तो सलार अकबर से मिलकर अपने कमरे की तरफ लौट रही थी। उस राहदारी से जब मैं गुजर रही थी तो अचानक सलीम के कमरे का दरवाजा खुला, और फिर उसने मुझे अंदर घसीट लिया। ज़ाहिर है कि दुलारी उस वक्त कमरे में नहीं होगी। हाँ, वो बाद में आई थी, मैंने बताया। और मुझे तो उसकी दीदा दिलेरी पर हैरत हो रही है कि उसने तुम पर दस्तराजी करते हुए कमरे का दरवाजा लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं की। हाँ, दुलारी क्यों चीखी थी? उसने मुझे सलीम की गिरफ्त से आज़ाद कराने के लिए उसके बाल पकड़ लिए थे, और सलीम ने अपनी बाल छुड़ाने के लिए दुलारी के पेट में कोहनी मारी थी तो वह चीख उठी। और दुलारी की चीख सुनकर ही मैं उस तरफ दौड़ा था, और उसका चीखना अच्छा ही हुआ, लेकिन उसका रवैया मेरी समझ में नहीं आया। ना हक वो तुम्हें भी कसूर ठहरा रही थी, और वैसे तुम इस राहदारी में गलत निकल आई थी। सलार अकबर के कमरे से वापस अपने कमरे तक पहुंचने के लिए तुम्हारा उधर से गुजरना जरूरी नहीं था। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा, और अब मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मैं बताता हूं तुम्हें, मेरे साथ आओ।
اور پھر عادل نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا جس سے دلاری سالار اکبر کے کمرے تک لے گئی تھی، اور اس راستے میں واقعی وہ راہداری نہیں پڑتی تھی جس میں سلیم کا کمرہ تھا۔ میں راستہ بھول گئی ہوں گی، میں نے بات بنائی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چمپا ہی نے میری راہ کھوٹی کی ہوگی۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب ہم دوبارہ اس راہداری میں چل رہے ہیں جہاں میرا کمرہ ہے، اور عادل مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تو کچھ ہی دیر کے بعد دلاری آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ ہر چند کے عادل کے سامنے اس نے مجھ پر الزام تراشی کی تھی، پھر بھی مجھے اس پر ترس آنے لگا، اور میری نظر میں وہ بھی قصوروار نہیں تھی۔ دلاری ہی کیا، کوئی بھی آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے کو حقیقت ہی سمجھے گا۔ مابلہ جی، دلاری نے مجھے بھاری آواز میں مخاطب کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے سلیم کو سزا سے بچا لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی ہاں کہو چپ کیوں ہو گئی؟ میں بول اٹھی، کیا مابلہ جی، آپ بھی اس پہ پریم کرنے لگی ہیں؟ آخر اس نے جھجکتے ہوئے وہ بات کہہ ہی دی جو اس کے دل میں تھی۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو دلاری۔ تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا، اور سلیم تمہیں کو چاہتا ہے اور اس کی چاہت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں مابلہ جی؟ وہ حیران سا ہو کر بولی، میں تو کچھ نہیں سمجھی۔ مجھے ایک بات کا جواب دو دلاری، جب سے تم میرے ساتھ ہو کیا تمہیں کچھ عجیب اور پر اسرار باتیں محسوس نہیں ہوئی؟ مثلاً ایک دفعہ شہزاد کو تم نے سلیم سمجھ لیا تھا۔ ہاں مابلہ جی، وہ گیرہ آج تک میرے ذہن میں پڑی ہوئی ہے، دلاری نے اعتراف کیا۔ میرے من پر آج تک اس واقعے کا بوجھ ہے، کیونکہ شہزاد کو میں نے سلیم جان کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے دلاری کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسی طرح ایک رات جب سلیم تم سے ملنے آیا تھا تو میرے کمرے میں آ گیا تھا، اور وہ مجھے دلاری سمجھا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا نا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں مابلہ جی۔ اور اب آج کا واقعہ یاد کرو۔ یہ بتاؤ کہ جب تم سلیم کے کمرے تک پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا یا اندر سے بند تھا؟ دروازہ اندر سے بند تھا، اور میں نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر دیکھا تھا کہ شاید کھلا ہو، اور اسی کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی تھی۔ پھر دروازہ کھل گیا تھا، اور دروازہ کھلتے ہی تم نے مجھے اور سلیم کو مسحری پر دیکھا تھا نا؟ ہے نا؟ ایسا ہی ہوا تھا مابلہ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور کمرے میں میرے اور سلیم کے سوا تو اس وقت تمہیں کوئی اور نظر نہیں آیا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، آپ دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، اور دروازہ کھلتے ہی تم فوراً ہی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ بتاؤ دلاری کہ جب سلیم مسحری پر تھا اور دروازہ کس نے کھولا؟ اگر سلیم نے دروازہ کھولا ہوتا تو وہ تمہیں مسحری پر نظر نہ آتا۔ ظاہر ہے کہ وہ دروازہ کھولتے ہی پلک جھپکتے مسحری تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں مابلہ جی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور پھر دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ اور دلاری کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہونے لگا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نادیدہ وجود بھی تھا۔ نادیدہ وجود؟ دلاری بڑبڑائی۔ ہاں دلاری، دروازہ کھولنے والا ایک نادیدہ وجود تھا، اور سلیم بھی اسی کے زیر اثر تھا۔ اور پھر جب وہ اس نادیدہ وجود کے سیر سے آزاد ہو گیا تو سب کچھ بھول گیا۔ بولو دلاری، کیا سلیم کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار نہیں کر رہا تھا؟ ہاں، وہ انکاری تو تھا، اور تم نے میری آواز میں جو الفاظ سنے تھے وہ بھی میں نے ادا نہیں کیے تھے۔ اسی نادیدہ وجود نے میری آواز میں تمہیں دھوکہ دیا۔ پرنتو مابلہ جی، اس سے کسی نادیدہ وجود کو کیا لابھ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ فائدہ بھی کم نہیں کہ مجھے تمہارے اور عادل کے سامنے ذلت و رسوائی سے دو چار ہونا پڑے، اور میں اسی طرح دلاری کو قائل کر کے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ دلاری، وہ کوئی آوارہ روح ہے، اور کسی خبیث عورت کی بھٹکی ہوئی روح جو میری دشمن ہو گئی ہے۔ اور دلاری کے چہرے سے خوف کا اظہار ہونے لگا، اور پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں نے مابلہ جی ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ مجھے آپ کے کمرے سے رات کے وقت کسی عورت کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تھی، تو پھر وہی بدرو ہوگی، اور میں آپ کو ایک جنتر بتاؤں گی مابلہ جی، آپ کے جاب سے وہ بھاگ جائے گی، اور سدا کے لیے بھاگ جائے گی، اور پھر کبھی آپ کو نہیں ستائے گی۔ سلیم کو بھی میں یہ جنتر بتا دوں گی تاکہ وہ آوارہ روح اس پر پھر کبھی قبضہ نہ کر سکے۔ اور میرا من گواہی دے رہا تھا کہ میرا سلیم مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور آپ بھی مابلہ جی اتنی گری گزری نہیں۔ اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جو کچھ ہوا اس روح کا اثر تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ دلاری کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا تھا، اور وہ مطمئن ہو کر میرے پاس سے لوٹی اور برابر والے کمرے میں ہی ٹھہری تھی۔
दुलारी तो मेरे पास से चली गई, मगर मैं ये सोचने लगी कि मुझे इस कोठी में वो रात गुजारना चाहिए या नहीं। और चंपा को भी शायद अंदाजा हो गया था कि मैं इस कोठी में रात नहीं रुकूंगी, और यही वजह थी कि उसने मुझ पर वार करने के लिए रात का इंतजार नहीं किया था। गालिबन आज वो सलीम को अपना आलाकार बनाकर मेरी आबरू पामाल कराने में कामयाब हो जाती, लेकिन दुलारी की गैर मुतवक्का आमद ने उसका खेल बिगाड़ दिया। फिर भी उसने मौका से फायदा उठाने में कोई कमी नहीं की थी। उसने मेरी रुसवाई का सामान तो बहरहाल कर ही दिया था। बात सिर्फ एक रात की थी, और ये एक रात मैं किसी होटल में भी गुजार सकती थी। उस कोठी में रात गुजार कर मैं मजीद कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। लानती चंपा मुझे फिर किसी आजमाइश में डाल सकती थी, और जरूरी नहीं था कि एक बार नाकाम होकर वो खामोश बैठ जाती। हर चंद के अभी विलियम की तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं था। वो अस्पताल में था, और फिर भी मैंने मेकअप के बगैर कोठी से निकलना मुनासिब नहीं समझा। मैंने एक सूट केस अपने साथ ले जाने के लिए उसमें ज़रूरी अशिया रखी, और फिर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। और मुझे इसी दौरान ख्याल आया कि रवानगी से कबल आदल को ज़रूर से आगाह कर देना चाहिए कि मैं जा रही हूँ और अब कल आऊँगी। और यही सोच के मेकअप करने के बाद मैंने दुलारी को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया, और मेरा बदला हुआ चेहरा देखकर वो हैरान रह गई। और यूं हैरत से क्या देख रही हो, मैं मामला ही हूँ, मैं बोल उठी। और आपकी आवाज़ तो वही है, पर चेहरा, और मैंने मेकअप करके अपना चेहरा बदल लिया है। सुनो, तुम ऐसा करो कि पिंडत जी से कहो मैं उन्हें अपने कमरे में बुला रही हूँ। और दुलारी ने मेरी बात सुनकर इकरार में सर हिलाया और फिर चली गई। कुछ ही देर में आदल आ गया, और मुझे मेकअप में देखकर उसने हैरत का इजहार नहीं किया, और दुलारी ने गालिबन उसे मेकअप के बारे में बता दिया था। बेड के अलावा कमरे में चंद कुर्सियां और एक मेज भी थी, और मैं भी उस वक्त एक कुर्सी पर ही बैठी थी, और करीब ही वो सूटकेस रखा था जो मैं अपने साथ ले जाने वाली थी। आदल मेरे मुकाबले वाली कुर्सी पर बैठ गया, और उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि विलियम के बचकर निकल जाने के बाद जिस तरह मेकअप करके मेरा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, उसी तरह आदल के लिए भी यह खतरा पैदा हो गया, और मुझे चाहिए कि उसे भी खतरे से आगाह कर दूं। और अगर पहले से मुझे किसी ऐसी सूरत हाल का अंदाजा होता, तो जैसे मैंने कलकत्ता में शंकर दादा और उसके आदमियों को डिसूजा से चेहरा छुपाने की ताकीद की थी, यहाँ भी वैसा ही करती, और खुद मैं भी डिसूजा के सामने मेकअप के बगैर नहीं आई थी। मालूमात के हसूल के बाद डिसूजा को तो खैर कत्ल करना पड़ा, और अगर वो मेरा या शंकर दादा वगैरह का चेहरा देख भी लेता तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन विलियम ना सिर्फ मेरा चेहरा देख चुका था, बल्कि उसने रघुवीर और आदल के चेहरों को भी देख लिया था। और रघुवीर तो अब हर खतरे से बेनियाज हो गया, क्योंकि वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। मगर आदल के लिए यकीनन खतरा था, और जिन लोगों ने विलियम पर इंतहाई तशद्दुद किया था और उसे मौत की सरहद तक पहुंचा दिया था, वो भला उनके चेहरे कैसे भूल सकता। मैंने आदल से पहले यही बात की, तो वो बोला, मुझे खुद इसका अंदाजा था। और फिर सलार अकबर ने मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई। अब तुम भी यही कह रही हो, और मैं बहरहाल इस सिलसिले में एहतियात बरतूंगा। सलार अकबर ने तो हमारे इस रुकन को भी यही ताकीद की है जो हमारे बाद विलियम के पास मौजूद रहा था, और वही जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि विलियम को सोने ना दे। और हमारी तंजीम में मेकअप के कई माहरीन मौजूद हैं। खुद सलार अकबर का शुमार भी इन्हीं माहरीन में होता है। और फिर भी तुम्हारा शुक्रिया मामला कि तुमने इस सिलसिले में याद दहानी कराई। हाँ, ये बताओ कि इस वक्त तुमने मेकअप क्यों किया? क्या तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, मैं जा रही हूँ, और अब कल सुबह ही वापस आऊंगी। मुझे यह हक तो नहीं पहुँचता कि तुमसे सवाल करूँ कहाँ और क्यों जा रही हो। फिर भी इसकी कोई तो वजह होगी, आखिर कोई हर्ज ना हो तो समझा तो दो। आदल ने नरमी से बोला, वजह वही है जो शायद पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे कुछ नादीदा दुश्मन ऐसे हैं जिनसे तुम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जो मैं नहीं चाहती। हाँ, मुझे याद है तुमने इसी तरह की कोई बात पहले भी की थी। तुम शायद किसी होटल में ये रात गुजारोगी। जाहिर है कि इसके सवार कहाँ जा सकती हूँ। ठीक, अगर तुम यही मुनासिब समझती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और खाना खा के चली जाती तो ज़्यादा बेहतर था। वैसे तुम्हारी मर्जी है, और मैं इसलिए कह रहा था कि खाने का वक्त हो चुका है। और मैंने आदल की बात मान ली और खाना खाने के लिए रुक गई। आदल को मैंने साथ ही खाना खाने के लिए कहा, तो कुछ देर के बाद आने को कहकर मेरे पास से उठ गया। वापसी में उसने ज़्यादा देर नहीं की, और उसी के बाद दुलारी हम दोनों के लिए खाना ले आई, और आदल ही के खाने के लिए कह आया था। खाना खाकर चाय पीने के बाद मैं वहां से चल दी,
اور میں نے واپسی میں اس کوٹھی کے محل وقوع کا ذہن نشین کر لیا تاکہ آئندہ روز جب وہاں سے لوٹ کر آؤں تو راستہ یاد رہے۔ اور مجھے اب دہلی کے کسی 5 اسٹار ہوٹلوں کے نام معلوم تھے اور میں نے انہی میں سے ایک ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ ایک سڑک پر آ کر مجھے کسی خالی ٹیکسی کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور میں اس وقت شرٹ اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھی اور اپنے چہرے کے میک اپ اور لباس کی وجہ سے میں غیر ملکی معلوم ہو رہی تھی، اور ایسے میں نے دانستہ کیا۔ حکمران کیونکہ غیر ملکی ہی تھے، اس لیے مقامی لوگوں کا رویہ غیر ملکیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور غیر ملکیوں کو ہر جگہ ایک طرح سے خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ لوگ احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے دبتے بھی تھے اور میں انگریزوں ہی کے لب و لہجے میں ان کی زبان بولنے پر قادر تھی، اور اس لیے کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے غیر ملکی جان کر قدرے لمبا راستہ اختیار کیا، مگر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مطلوبہ ہوٹل پہنچ کر مجھے پہلی منزل پر ایک کمرہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں نے وہاں اپنا نام ہیلن لکھایا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ کلکتے سے آئی ہوں، اور ابھی رات کے 8:30 ہی بجے ہوں گے کہ سونے کا وقت نہیں ہوا تھا، اور پھر بھی میں نے لباس تبدیل کیا اور میرا جسم اب شبل خوابی کا لباس تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ ہی سکتی تھی، کیونکہ نہ مجھے اب صبح ہونے سے پہلے کہیں جانا تھا اور نہ ہی بصیت ہیلن کسی کو مجھ سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ اور کمرے میں ہلکا نیلا بلب جلانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی۔ بطور احتیاط اپنے چہرے سے میں نے میک اپ نہیں اتارا اور ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کر کے میں نے دانست میں لانتی چمپا کے کسی ممکنہ وار سے خود کو بچا لیا، اور مجھے بھی بستر پر لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ ایسی حرکت ایک ہی ہستی سے متوقع تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسی ناشائستہ حرکت نہیں کی تھی۔ ہاتھ کا دباؤ اب ہٹ چکا تھا اور اب میں آلتی پالتی ہمارے بستر پر بیٹھی ہوئی تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، اور میرے جسم کے بلائی حصے پر کسی نے زور سے چٹکی بھری اور میرے منہ سے سسکی نکل گئی، اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ سامنے کیوں نہیں آتی کمینی، میں غصے میں چیخی، اور جواب میں ایک آشنا ہنسی کی آواز سے کمرہ گونجنے لگا۔ وہ لانتی چمپا ہی تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، تو مجھ سے کیا چھپائے گی مابلا، میں تو تجھے ہر حال میں دیکھ چکی ہوں، اور پھر پردہ کیسا، تو بہت ذلیل اور گھٹیا عورت ہے۔ اور میں نے نفرت و حقارت کا اظہار کیا، اور وہ ابھی تک میری نظروں سے اوجھل تھی۔